Anji, a very good morning, one and all present over here. Today, 8th of November 2021, we will be going to start our next chapter, that is Human Environment, chapter number 7 from Geography. Fine. So before proceeding to that, as we had completed our previous chapter, that is Struggle for Equality, and in that we have assured that there is a provision of every person have one vote, and that one vote has one value. One person, one vote, one value. On the basis of that parameter, we had tried a level based to conduct a election in our class for choosing the representatives. Out of that, we had conducted the this process, and names for that जो आए हैं उनके रिजल्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Before that, I had discussed struggle for equality में question answers मैंने discuss किए थे. You had completed it in your notebook? Yes. That's very nice. That we will be going to check. And if any doubt is there from your side, you can ask from that. Next is first chapter, result for the, you can say your voting, whatever you had cast for the girls representative and boy representative, that I will announce you after completing today's task. Is it okay? So आज का हमारा task क्या है? That is human environment, settlement, transport and communication. हाँ जी, देखिए human environment. इसके 3 components जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. That is first is settlement, transport, then is transport, and third is communication. Is it okay? ठीक है. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, घर पर, स्कूल में, बस में, ऑटो में, ठीक है, या घूमने कहीं जाते हैं, या फ्रेंड सर्कल के साथ, जैसे हमारे 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो जो है वो हमारा एनवायरनमेंट. हमारी फर्स्ट पीरियड का एनवायरनमेंट, सेकंड पीरियड का एनवायरनमेंट, हम आप देखो, ऑब्जर्व करो, आपका फर्स्ट पीरियड का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता होगा सेकंड पीरियड से. बैठे आप उसी प्लेस के हैं लेकिन एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है. आप फील डिफरेंट करते हैं. किसी टीचर से आप थोड़ा स्केयर्ड होते हैं, किसी टीचर के साथ आप थोड़ा फ्रैंक होते हैं, किसी टीचर के साथ आप थोड़ा पोलाइट होते हैं, किसी टीचर के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है. ब्रेक में आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है, होता है. So that is our environment. Environment means a surrounding in which human is living. ठीक है. So chapter 1 we will be going to learn about the early human being depend entirely on the nature for food. हम लोग को पता है कि earlier people were living and giving their मतलब surrounding and living their life on the basis of natural food. पेड़, पत्ते, पौधे, फूल, ये सब, फल, ये सब लोग खाते थे. एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर. बट विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स, develop better means of transport and communication. In this way they modify the environment where they live. पहले जमाने में लोग जो है वो अपना बहुत सिंपल लाइफ जीते थे. गड्ढा, यक्का, रथ, ऐसी सवारियां होती थी. फिर आए साइकिल, फिर आए स्कूटर्स, मोपर्ड्स, बाइक्स, फिर आए धीरे धीरे कारें, अब कार्स के ब्रांड्स. फिर आया मतलब only few section of society was having you can say air flights वगैरह, और आजकल ये नॉर्मल चीजें हैं. So first point जो हम लोग डिस्कस करेंगे, that is settlement. Settlement क्या है? It is a place where people live. Settlement क्या है? It is a place where people will live there and build their homes. A place where people live and build their homes.
early human beings lives on tree and in caves. अब ये फिलअप आ सकता है, early human lives in dash and dash, ठीक है, ये बन सकती है लाइन. So people build their homes. Early human lives on tree and caves. When they start to grow crops, it become necessary to have a permanent house. When human need a permanent house. बन गया, क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है. The settlement grew near the river valley. The settlement grew near the dash. ठीक है, the settlement grew near the dash river valley as water is available and land is fertile. So most of the settlement, अगर हम बात करें, अगर मैं यही आपको एग्जांपल दूं, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस रिवर उसके पास ही सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. इजिप्टियन सिविलाइजेशन सुना, इजिप्ट नाइल रिवर के पास है, पिरामिड वाले नाइल रिवर के पास है, वो भी रिवर के पास हुई. नाइल इज द लॉन्गेस्ट के लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर, और वहां पर भी इजिप्ट की है ना सभ्यता, हम लोग कहते हैं ना पिरामिड स्ट्रक्चर. सो settlement settle there where land is fertile and water is available. बेटा जी पहले थोड़ी ना था, पहले थोड़ी ना था, धीरे धीरे. So the settlement grew near the river valley and the water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlement become larger. धीरे धीरे उस जगह पर क्या होना स्टार्ट हो गया, ट्रेड डेवलप हुआ, व्यापार, ठीक है. धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया उस एरिया में, और ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उन एरियाज में ज्यादा डेवलप होनी स्टार्ट हो. अब आप देखिए, पहाड़ों में लोग पॉपुलेशन ज्यादा है कि प्लेन्स में ज्यादा है? प्लेन्स में क्यों ज्यादा है? क्योंकि रोड कनेक्टिविटी, accessibility, construction of homes and buildings are easy. That is why in the plains people are living more. So, so do you recall the names of civilization that grew near the river bank? Indus, Tigris, Nile and Havangi. ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कौन सी. अब मैंने आपको दो तो बता दी है, बाकी तीन तो आपको खुद आप फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है. इंडस में कौन सी है? हड़प्पन सिविलाइजेशन. नाइल में कौन सी है? इजिप्टियन. टिग्रीज एंड हवांगो की सिविलाइजेशंस आपने फाइंड आउट करके लिख के लेके आनी है. गॉट इट? ठीक है. टिग्रीज एंड हवांगो की रिवर पर कौन सी सिविलाइजेशंस थी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है प्लेसेस, साइट क्या है. डू यू नो में लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर देखिए, डू यू नो द प्लेस वेयर बिल्डिंग्स और द सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड अ साइट. डिफाइन साइट, अ टर्म साइट, ठीक है. टर्म साइट आ सकता है, ठीक है. A place where a building or a settlement develop with is called a site. और नेक्स्ट फीचर्स आ जाते हैं उसके. द नेचुरल कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट. साइट की सिलेक्शन के लिए क्या क्या देखा जाता है? फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल. ये चारों फीचर्स होते हैं जहां पर लोग अपना घर बनाना प्रेफर करते हैं. क्या? एक तो क्लाइमेट बहुत हार्श और बहुत ज्यादा हॉट एंड बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर शुड बी देयर, सुटेबल लैंड वेयर द कंस्ट्रक्शन एंड रोड कनेक्टिविटी, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये सब कुछ पास पास हो तो हमें ज्यादा बेनिफिट रहता है. एंड फर्टाइल सॉइल. सो नेक्स्ट आया था सेटलमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप. अब देखो सेटलमेंट जो है वो दो तरह की है. कौन कौन सी तरह की होती है? परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट, ठीक है. वन इज परमानेंट
and second is temporary. ठीक है, ये दो सेटलमेंट। इसी तरह से अपना फ्लो चार्ट बनाते रहना, बिकॉज आपको इससे याद रखना मतलब आसान होगा। परमानेंट सेटलमेंट विच आर occupied a short time are called permanent, and permanent settlement which carry for long period of time, and temporary settlement for the short period of time. The people living in the deep forest area, hot and cold desert and the mountain often dwell in such temporary settlements. जो लोग नदियों के किनारों पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर शीप रेयरिंग के लिए जो जाते हैं, वो 6 महीने रहते हैं वहां पर, टेम्परेरी रहते हैं। सो दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। अब ये ट्रांसह्यूमेंस कौन से हैं? दैट इज अ पर्सन, राइट हैंड साइड पर देख लीजिए, पेज नंबर 48 पे देखिए, आपको येलो बॉक्स दिख रहा होगा, ट्रांसह्यूमेंस लिखा हुआ है। इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ people who rear animal and move in search of new pasture according to the change of the season. When summer come, the people, shepherds जो होते हैं, जो pastoralists होते हैं, they move from the lower hand to the hilltop to get the good quality of pasture, क्योंकि वहां पर पर्वत पे जो स्नो होती है वो खत्म हो जाती है। When again winter starts, जैसे अब पीरियड स्टार्ट हो गया विंटर्स का, then they again move down from the high hills to the foothills, from the high hills to the foothills to get the another pasture. उससे दो फायदे हैं। नंबर 1, एक तो उनकी मूवमेंट होती है एक एरिया से दूसरे एरिया तक, तो उस एरिया में दूसरा पॉइंट क्या है, जो एरिया वो 6 महीने के लिए छोड़ के गए, उस एरिया में पैस्चर जो है, घास जो है, वो दोबारा उग जाता है। ठीक है, और उधर जाकर फिर खाना शुरू हो गया गर्मियों में, जैसे सर्दियां स्टार्ट आई ऊपर से फिर वापस आ गए, ऊपर स्नो पड़ेगी, लैंड को टाइम मिल गया और ग्रो करने के लिए, और उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। इस तरह से ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ द पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज from 6 period of time from the lower foothills to the top hills, and adverse climatic condition from the top hills to the lower hills. They make environment equitable climate. Environment भी, quality of fodder also change for the cattle. एक बार कुछ खाना, एक बार उनकी जो quality of milching है, that is also maintained. So इससे फायदे, और एक logical balance भी maintain है। हाँ बोलिए। Migrate, हाँ माइग्रेटिंग ना, दे आर, मतलब यू कैन से, हाँ वो बता सकते हो। इज इट ओके? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हु आर ट्रांसह्यूमन? डिफाइन द टर्म ट्रांसह्यूमन कर सकते हो? टर्म ट्रांसह्यूमन, टर्म साइट, टर्म परमानेंट सेटलमेंट, टर्म टेम्परेरी सेटलमेंट, ये सारी टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, पीपल लिव देयर, you can say people develop their settlement near the dash areas. कहाँ? ठीक है। So I hope up to this is very much clear. कोई doubt तो नहीं है? So they are called transhumans. In the settlement, people built homes to live in. It was Mary's birthday party. अब देखिए यहाँ पर एक आ जाती है कि किस तरह से एक सीन क्रिएट किया हो गया है, आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की हुई है। It was a Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive at that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tired, coughing, and wheezing. She explained the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oof, the pollution of our city." Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do you have such traffic jam and such a pollution in the cities?" The number of the vehicle is increasing day by day due to the growing population in the cities. सीन बताया गया है, गांव में कभी भी ट्रैफिक जाम हुआ
नहीं होता। शहरों में आपने अभी एक्सपीरियंस किया होगा दिवाली डेज में, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम्स इन द मेन स्ट्रीट्स और इन द मार्केट्स, देखा था। और उसके कारण बहुत सारा जो है स्मोक सा भरा हुआ था, एनवायरनमेंट वाज नॉट क्लीन, इट वाज अ स्मॉगी क्लाइमेट। स्मॉग क्या होता है? व्हेन pollution or emission of the smoke is merged with the fog, that is called smog। ठीक है, स्मॉग ही क्या होता है? वो उतरता भी नहीं है 12-12 1-1 बजे तक। आपने देखा होगा हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ही, जो आपने माउंटेन्स में कभी फॉग देखी है? नहीं होती, कभी भी नहीं होती, वहां सिर्फ क्लाउड्स होते हैं, वहां पर फॉग नहीं होती, फॉग नहीं होती, क्लाउड्स होते हैं वो। दे और दूसरी चीज, आप प्लेन्स में फॉग को बड़े आराम से देखते हो, और उसके बाद कई फॉग होती है जो इतनी ब्लैकिश में होती है कि आगे कुछ भी हमें विजिबिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉग। मींस व्हेन fog is having heavy or it become heavy with the fume of industrial, you can say, जो उसका फ्यूम निकलता है, और पोल्यूशन जो है, हाँ ये भी कर सकते हो, दैट यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड स्मॉग। और ये हमें ब्रीदिंग में, सांस की किसी को प्रॉब्लम हो तो वहां पर हमें अफेक्ट ज्यादा करती है, ठीक है। सो यहाँ पर वही वो बता रहे कि हाउ द, you can say, pollution is there in the cities or in the settled life as compared to in the village. That is why you see many slums, squatters, settlement where people say in the congested and unhygienic condition. Shortage of the power and water supply are common problem in the cities. शहरों में water supply की shortage, शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, ये हमेशा पाई जाती है। Parsal said, our village may not have big cinema halls, well-equipped school, a good hospital, but we have lot of open space and fresh air to breathe. अब यहाँ पर शहरों और गांवों क्या कंपैरिजन हो गया? शहरों में सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब कुछ तो है, लेकिन फ्रेश एयर नहीं है, ओपन स्पेस नहीं है, जबकि गांव में ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। When my grandmother was sick, we had to rush him to the city in hospital. मेरी माता जी, दादी माँ जब बीमार हुई थी तो हमें उनको शहर में लाना पड़ा था, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटी गांव में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों के, अर्बन एरिया और रूरल एरिया से क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को भी? हाँ, 3-3 एटलीस्ट 3-3 तो बता ही दिए। From the above conversation, we can identify two different pictures of the settlements, the rural and the urban settlement. Village are the rural settlement where the people are engaged in the agriculture. अब यहाँ पर rural, अब देखो settlement जो है वो तो है permanent and temporary. उसके बाद जो settlement है वो किस तरह की होती है? Rural and urban. ठीक है, rural and urban. रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डिफरेंस, क्योंकि रूरल में भी परमानेंट होगी और टेम्परेरी होगी, और अर्बन में भी परमानेंट एंड टेम्परेरी हो सकती है। स्लम एरिया में जो होगी वो टेम्परेरी। इज इट ओके? फ्लैट्स चेंज नहीं करते हैं, वो तो रेंट पे रहते हैं ना, पर रहते तो परमानेंट में है ना, वो घर थोड़ी ना चेंज हो रहा है, पर्सन चेंज हो गया। हाँ, घर तो वही है, तो उनका चेंज तो ऑब्वियसली वहां पर, लेकिन हम लोग सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, घर की। परमानेंट जो एक बार बन गया, अब तुम लोग सपोज 7th क्लास में हो, तुम लोग इस रूम में हो, 8th में चले जाओगे, क्या बिल्डिंग चेंज हो जाएगी? तो नहीं हो सकती बेटा, बिल्डिंग तो वही है ना, उसमें पिछले 25 साल के 7th के बच्चे भी उसी में पढ़ रहे थे, और आज की डेट में वो डॉक्टर इंजीनियर्स बने हुए हैं, है या नहीं है? बिल्डिंग तो वही है ना, बिल्डिंग तो परमानेंट है ना, बिल्डिंग इज नॉट चेंजिंग। ऐसे तो जिस घर में आप रह रहे हो वहां पहले दादा दादी थे, अब आपके मम्मी पापा है, फ्यूचर जनरेशन में आप लोग होंगे, घर तो वही है।
परमानेंट सेटलमेंट है ना, नहीं है? इज इट ओके? सो परमानेंट सेटलमेंट विच रिमेन सेम थ्रू आउट द जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन तो चेंज होनी है, जनरेशन के कारण थोड़ी ना हम लोग कह रहे हैं, हम तो सेटलमेंट को कह रहे हैं। हाँ जी। So the rural people are engaged in which kind of activities? Agriculture, fishing, forestry, craft, work and trading. Rural settlement can be compact and scattered. Compact होती है छोटी and scattered होती है बिखरी हुई। छोटे छोटे घर होते हैं वहां पर और बिखरे होते हैं, एक घर यहाँ, एक घर वहां, एक घर वहां, ठीक है। बट कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलर वेयर फ्लैट्स एंड लैंड इज अवेलेबल। अर्बन एरिया में कॉम्पैक्ट होते हैं और एक ही जमीन के ऊपर इतने सारे फ्लैट्स, 20 से 25 फ्लैट्स घर। गांव में ऐसा होता है नहीं। So, in a scattered settlement, dwellers are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in the hilly tract, thick forest, and region of extreme climate. अब यहाँ पूछा जा सकता है कि the scattered settlements are found in the places where dash dash and dash। कहाँ पर मिलती है scattered? Hilly area, thick forest and region with the extreme climate। ठीक है, या ये वाली लाइन देख के write down which kind of settlement it is। It is found in which kind of settlement? That is scattered type of settlement। ठीक है, like example हो सकते हैं, the settlement is mostly settlement found in the hilly tract, thick forest and region of extreme climates are known as dash settlement। स्कैटर्ड सेटलमेंट। पता लग रहा है कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? श्रेया पता लग सकता है बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So in the rural areas, people build houses to build their environment. Their region is heavy rainfall. They have slanting roofs, place where people accumulate in the rainy season, and houses are constructed on the raised platform and stilt। अब यहाँ पर stilt देखिए, यहाँ पर house on stilt 7.4 पिक्चर देखिए। ठीक है, so 7.4 हाउस ऑन स्टिल्ट, डंडों पे। आपने मूवी वेलकम देखी होगी, उसमें जो एंड का क्लाइमेक्स सीन है वो अच्छी तरह से आपको याद होगा। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउस ऑफ स्टिल्ट्स। लैंड नीचे मार्शी होता है, मार्शी लैंड, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना, मैंने बोलने के लिए नहीं कहा आपको। Don't get excited that I am going to start the conversation regarding the picture. No, I had just given you the name for that, in which you might have seen that example of house on stilt, a place where water accumulates in the rainy season। बारिश के दिनों में पानी ज्यादा हो जाता है और वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। हाँ, temporary settled। So thick mud wall houses with the thatched roof is common in the areas of hot climate। हॉट क्लाइमेट में कैसा होता है, आपको बहुत बड़े स्टैग ऊपर, छत के ऊपर स्टैग्स होते हैं, स्टैग होते हैं बगास, जिसको हम लोग घास फूस बोलते हैं, रूफ बनाने के लिए आर वेरी कॉमन इन द हॉट क्लाइमेट। Local material like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. The towns are small and the cities are large urban settlement। टाउन्स जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में, अब आप अपने शहर का देखिए, बड़ा शहर है, हाउसेज आर कॉम्पैक्ट, छोटे छोटे गलियों में है। ठीक है, इन द अर्बन एरियाज पीपल आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज and name some of the village, town and city in your area। अपने कॉपी पर 5-5 नाम लिखिए अभी, विलेज के,
टाउन्स के और सिटीज के, अपनी रफ नोटबुक पे हर ईयर सेटलमेंट पता लगेगा आप लोगों को। रफ नोटबुक 5 विलेज के नाम, 5 टाउन्स के नाम, 5 सिटीज के नाम, जल्दी जरा